নিশিদিন কথা কত নিশিদিন কথা দিন যায় ভাবি মনে বহু আছে তুমি জানা মোর দাঁড়াইছে দিন যায় মন ভাবি মনে বহু আছে তুমি জানালে মরণ দাঁড়াই কাছে কানে শুনি কিছু বুঝি না বুঝে নাই মন নিশিদিন কথা কব সুদূর কঠিন অজানা এই পথে একাকী চলেছি কেহ সুদূর কঠিন অজানা এই পথে একাকী চলেছি কেহ সাথে কানে না পথ ভুলি দয়া করে তাই তুমি মোর সাথে কত কত নিশিদিন কথা সুদূর কঠিন পথের ঠিকানা হলো না তো জানা ভারী বোঝা হয়ে
চলিতে পারি পথের ঠিকানা হলো না তো জানা ভারী বোঝায় চলিতে পারি পাছে পড়ি করে তাই তুমি মন বোঝা লঘু কত শুধু দেশে কথা আধারে আধারে বেসেছি ভালো জ্ঞানে প্রদীপে তুমি জানালে আলো আধারে আধারে বেসেছি ভালো জ্ঞানে প্রদীপে তুমি জ্বালালে আলো ভয় ছিল সহিব কেমন দুঃসহ কথা এ পথের শেষ কোথায় জানি আমি নিয়ে যাবে সাথে মোহন জীবন সাথী এ পথের শেষ কোথায় জানি আমি নিয়ে যাবে সাথে মোহন জীবন সাথী পিছনে পান যেন নাহি টানে অপর গুরু কথা আজ এই গানটা ওখানে পড়ছে আজ তোমারি বিরহ বেদনা তোমার
নিবিড় নিবিড় তলে তোমারি প্রেমে পথটি যেন ওই ভগবান ধার নিবিড় নিবিড় তলে তোমারি প্রেমে পথটি যেন সেই তো তোমার গোপন অমৃত বাণী সেই তো তোমার গোপন অমৃত বাণী তোমারি বিরহ বেদনা বেদনা আজ প্রায় ২৬ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব তাঁর প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী মানবলীলা সংবরণ করে তার চির আনন্দ ধামে ফিরে গেছে। আজও তার সেই অহৈতুকী প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহের স্পর্শ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রজ্জ্বল হয়ে আছে, যা আর এত বছর ধরে আপনাদের টেনে নিয়ে এসছে এই সুন্দর অনুষ্ঠানে। গুরু মহারাজকে আমরা স্মরণ করছি, যারা তিরোধান তিথি উৎসবের মাধ্যমে সারাদিন ব্যাপী গুরু পাদুকা পূজন, হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠান, গুরু মহারাজ যেটা সবচেয়ে ভালোবাসতেন শিষ্য ভক্তদের প্রাণ ভরে খাওয়ানো, সেই ভান্ডারারও আয়োজন করা হয়েছিল। আমি ঘাঁটি পরিবারের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাদের এই আনকন্ডিশনাল লাভ আমার প্রতি, এবং তারা যে এই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, নাহলে এই অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। 1904 সালে মেদিনীপুরের মায়েরা বসে আছেন, ওই যে নন্দিতা মা বসে করেছিলেন তাদের বাইরে, তার সামনেই মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজজি, আমাদের মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী যে আশ্রমটা, যে বাড়িতে গুরু মহারাজজির বাবা তখন ওখানকে অফিসার ছিলেন, পোস্টেড ছিলেন 1904 সালে, যেই বাড়িতে গুরু মহারাজজি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। 96-এ বিশ্বনাথ ব্যানার্জি বলে একজন ভদ্রলোক মেদিনীপুর থেকে আমার কাছে আসেন কয়েকজন শিষ্য ভক্তদের নিয়ে। তারা প্রস্তাব দেন গুরু মহারাজজিকে যে বাবা, আপনার জন্মস্থানটি খুবই দয়নীয় দশা, এখানে যদি একটা বছরে অনুষ্ঠান করা যায় তাহলে এটা আবার উজ্জীবিত হবে, সেখানে প্রাণ ফিরে আসবে, এখানে আমরা একটা যজ্ঞ করতে চাই। তো গুরু মহারাজ যারা আদেশ করেন তোমরা দেওঘরে যাও, পবিত্রানন্দের সঙ্গে কথা বলো, সে দেওঘরে পুজো পাঠ সব করে। তো তারা দেওঘরে আসে, আমার কাছে প্রস্তাব রাখেন, আমি সাধারণ চিত্রে তা গ্রহণ করি। তো আমি গুরু মহারাজকে শীতেন্দুর কাছ থেকে নম্বর নিয়ে ফোন করি। আমি বলি, বাবা আমি যাবো যজ্ঞ করতে, কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে আপনি এসে পূর্ণাহুতি দেবেন, আমাকে আবার এর মধ্যে কেন ধরা হচ্ছে? তুমি যাবে, যজ্ঞ করবে, আনন্দ পাবে সবাই। তাহলে না বাবা, আপনাকে আসতেই হবে, তবেই আমি যাব।
কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন যে ঠিক আছে, তুমি শিবেন্দু গুপ্তর সাথে যোগাযোগ করো, ওকে জানাও যে ডিসেম্বর মাসে আমি যে পুরীতে প্রোগ্রামটা করি সেটা এরকমভাবে করবে, তার 3 দিন আগে তুমি যজ্ঞ শুরু করবে, 3 দিনের যজ্ঞ হবে, বিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ হবে, আর লাস্ট দিনে আমি পুরীতে প্রোগ্রাম করে আমার ট্রেনটা রাত্রিরে এমনভাবে যোগ করে দেওয়া হবে, সকালে খড়গপুরে নামবো, আর খড়গপুর থেকে সোজা স্টেশন থেকে আমি গিয়ে যজ্ঞ মণ্ডপে পূর্ণাহুতি দিয়ে আমি বেরিয়ে যাবো, প্রণাম নিয়ে বেরিয়ে যাবো। গুরু মহারাজ কথা রেখেছিলেন, আপনার সেই ভিডিও দেখেছেন, আমি ফেসবুকে দিয়েছিলাম। 96, 97, 98 3 বছর গুরু মহারাজজি পরপর সেই রেখেছিলেন তার কথা, এবং গুরু মহারাজজি এসেছিলেন। নবকুমার বাবুর ছোট মেয়ে সুলেখা মা আর কিশোর বোন সুলেখা মা এবং তার স্বামী কিশোর দা, এবং বিশেষ করে যে ব্রতীরা যেতেন, নন্দিতা মা, তার বোনেরা আর সব শিষ্য ভক্তরা, তাদের সমস্ত আয়োজন করতে, খাওয়া দাওয়া, তখন থেকেই তাদের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা। এবং এবার একটা গল্প বলি, পূর্ণাহুতি যেদিনকে হতো, গুরু মহারাজ বেরিয়ে যেতেন, আমরা সবাই ছুটতাম কোথায় বলুন তো? কর্ণগড়। কেন? কর্ণগড়ে হচ্ছে খড়গপুর, প্রায় 15 কিলোমিটার মধ্যে। এবার ওই কর্ণগড়ের রহস্যটা বলছি। কর্ণগড়ে একটা বগলামুখীর পীঠ আছে। আমাদের বড় মহারাজ বালানন্দ মহারাজ যেদিনকে গুরু মহারাজজি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেদিনকে রাত্রিরে সেই কর্ণগড় মন্দিরে বগলা পীঠেই মহারাজজি বালানন্দ মহারাজজি ছিলেন। এবং পরের দিন গিয়ে তিনি গুরু মহারাজকে দেখেন, এবং তারপরে এই নন্দিতা ব্যানার্জি, নন্দিতা মায়েদের বাড়িতেই, পাশের সামনেই তাদের বাড়ি, বালানন্দ মহারাজজি তাদের ওই বাইরের ঘরটায় গিয়ে, হ্যাঁ বাইরের ঘরে বসেছিলেন, গিয়ে ওখানে বাস করেছিলেন। তো তাদের সেই বাড়িতে এখনো আছে। তো সেই বাড়িটা তখন, তারপরে গুরু মহারাজকে আমি রিকোয়েস্ট করলাম, অনুরোধ করলাম, প্রার্থনা করলাম। তো গুরু মহারাজ ওখানে আবার অর্থদান করলেন, অর্থদান করে ওখানে রেনোভেশন হলো আশ্রমের। তারপরে ওখানে ওই চক্ষু হাসপাতাল, যেটা চক্ষু হাসপাতালটা আবার রেনোভেশন হলো, কাজকর্ম শুরু হলো। তারপরে আমি 2008 পর্যন্ত আশ্রমে ছিলাম, 2007 পর্যন্ত ওখানে যজ্ঞ চলেছিল। শুধু 99-এ গুরু মহারাজ যে দেশালে দেহরক্ষা করেন, সেই সালে যজ্ঞটা বন্ধ ছিল। তো মেদিনীপুরে এই অনুষ্ঠানটি হতো। গুরু মহারাজজির ছিল অশ্রান্ত ভ্রাম্যমান কর্মময় জীবনে। তিনি বুঝেছিলেন যে বেদান্ত উপনিষদ ইত্যাদি এর গূঢ় অর্থগুলো বোঝা আমাদের মতন সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না। তাই জন্য বুঝেছিলেন বৃথা এইসব প্রবচন করা। তাই জন্য তিনি নাম সংকীর্তনকে তার বাণী প্রচারের যন্ত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন। নাম সংকীর্তনকে তিনি মনে করতেন যে আমি এইসব বেদান্ত উপনিষদ বলবো, তারা শুনবে, কিছুটা বুঝবে, কিছুটা বুঝবে, বাড়ি থেকে ঘুমিয়ে পড়বে। তার থেকে তাদের মুখে যদি কয়েকবার কিছু নাম উচ্চারণ করিয়ে নি, সেটা তাদের কাজে লাগবে। তো এইভাবে তিনি নাম প্রচারকে তার বাণী প্রচারের যন্ত্র নিতেন। কেননা কি ছিল, আসলে গুরু মহারাজজির আর কিছু প্রয়োজন হতো না, আমাদের প্রয়োজন লোকজন জড়ো করার জন্য। আমাদের তো সেই জিনিস সাধনা নেই। গুরু মহারাজের যে প্রেজেন্স, তার প্রক্সিমিটি, সেটাই এমন ভাইব্রেশন সৃষ্টি করত। আসলে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলি, তিনি রাজ্যে লিখেছেন
প্রবল সত্যগুণ সম্পন্ন মহাপুরুষগণের দেহের চতুষ্পার্শ্ব থেকে একটি আভা মণ্ডলের বিকিরণ হয়। তাদের পুত দেহ সাধনলব্ধ তাদের সেলের প্রত্যেকটি সেলের কোষের পরিবর্তন হয়ে যায়। যেটা ঋষি অরবিন্দ অতি মানুষের কনসেপ্টের কথা বলেছেন, যে অতি মানুষ হবে এরপরে, যাদের সাধনার দ্বারা সেলের। আবার দেখুন, এটা তো আমাদের দীর্ঘ জীবী ব্যাপারটা তো আমাদের আসলে আছে। কায়াকল্প করেছিলেন তো বালান্ত মহারাজ 120 বছর বেঁচেছিলেন। কলিযুগে বিংশোত্তরী দশা, আমাদের যে আমরা জন্মগ্রহণ করি তখন আমাদের সমস্ত গ্রহের দশাবর্ষ মিলে 120 বছর হয়, তাই জন্য বলে বিংশোত্তরী দশা। কলিযুগে মানুষের আয়ু হচ্ছে 120 বছর, বালান্ত মহারাজ ছিলেন। আর ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কায়াকল্প করেছিলেন। তিনি নিজের দেহের কোষগুলোকে আবার রিভাইটালাইজ করে আর একটা 120 বছর পেয়ে গেছিলেন। He lived for 250 years. And Brahmanandaji coronated 5 generations of Sayajiraj Gaikwad of Baroda, Gaikwads. যেরকম আপনার ইন্দোরের হোলকার ফ্যামিলি, আহিল্যাবাই হোলকার, গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়া, সেরকম বরোদার হচ্ছেন বরোদা স্টেটের গাইকোয়াড়। তাদের 5 জেনারেশনকে তিনি রাজগুরু হিসেবে ব্রহ্মানন্দজি করোনেশন করেছিলেন। তাই জন্যে তখন তারা যখন 2012 সালে 150 বছর পালন করলো বরোদা ইউনিভার্সিটি, তখন আমাকে চিফ গেস্ট করেছিলেন এবং আমি কিনোট অ্যাড্রেস দিয়েছিলাম। আমার সামনে ডক্টর সুব্রমণিয়াম স্বামী বসেছিলেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, বড় বড় প্রফেসররা ছিলেন। আমার একটা কিনোট অ্যাড্রেস ছিল এবং সেটা তারা খুব খুশি হয়েছিলেন। তাই জন্য পরের বছর আবার তাদের ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ গভর্নরের সঙ্গে আমাকেও ইনভাইট করেছিলেন চিফ গেস্ট হিসেবে। যাই হোক, তো বরোদা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর কিন্তু গভর্নর নন, তারা রাজপরিবারে, এটা একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া আছে বরোদা ইউনিভার্সিটিতে। তো তখন যিনি রানী ছিলেন মৃদুলাজি, তখন তিনি ছিলেন আমার সঙ্গে মঞ্চে। তো ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে আরেকটা রহস্য আপনারা জেনে নিন আজকে। ঋষি অরবিন্দের নাম আপনারা শুনেছেন, পন্ডিচেরি। ঋষি অরবিন্দ আমাদের শিষ্য। We not only belong to this spiritual heritage, the enlightened spiritual heritage of Mohanandaji, Bayanandaji and Brahmanandaji, we are the initiator of another cult of Sri Aurobindo. Sri Aurobindo was born in 1872. 10 years later, Swami Vivekananda. 1872-তে জন্মগ্রহণ করার পর তার বাবা 5 বছর বয়সে কৃষ্ণধন ঘোষ খুব বড় ডাক্তার ছিলেন। তিনি গভর্নেন্স রেখে বাচ্চাদের ইংল্যান্ডে পড়ান, বিদেশি মানসিকতা তারা বড় হবে। ওখানে 1893-তে উনি ICS, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে সুভাষচন্দ্র বোসের মতনই 4th র্যাঙ্ক পান ঋষি অরবিন্দ। পেয়ে তিনি ঠিক করেন হি ওন্ট সার্ভ ব্রিটিশ এম্পায়ার লাইক আপনার সুভাষ বোসের মতো। তখন বরোদার রাজা সয়াজিরায় গায়কোয়াড়, যার নামে MS ইউনিভার্সিটি, মহারাজা সয়াজিরায় গায়কোয়াড় ইউনিভার্সিটি, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শিষ্য। তিনি তখন লন্ডনে ছিলেন। উনি ঋষি অরবিন্দকে বলেন, উনি জানতে পারেন খুব মেধাবী মানুষেরই, ওনাকে বলেন, ওকে ইউ নিড নট সার্ভ ব্রিটিশ এম্পায়ার, ইউ স্ট্রেট away come to Baroda and join my state as personal secretary and you start teaching English, Latin, French in Baroda University. এইভাবে ঋষি অরবিন্দ চলে আসে বরোদা ইউনিভার্সিটিতে, উনি পড়াতে শুরু করেন। তখন উনি জানতে পারেন তার গুরু হচ্ছেন ব্রহ্মানন্দজি। গঙ্গনাথে আসেন, গঙ্গনাথে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে যোগ দীক্ষা লাভ করেন। তাই জন্যে আমি পরে যখন গিয়েছি পন্ডিচেরিতে, আমি তাদের কাছে অনেক সম্মান পেয়েছি। গুরু মহারাজজির ওই
আশীর্বাদ শ্রী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জায়গায় আছি আমি এখন বলে, সেই গদিতে মহন্ত বলে তারা আমাকে খুব সম্মান দিয়েছেন। পন্ডিচেরি আশ্রমের প্রেসিডেন্ট আমাকে বিশাল তাদের গেস্ট হাউস দিয়েছিলেন, আমি ছিলাম ওখানে। তো তাদের মধ্যে এটা আর ঋষি অরবিন্দের বইতে একবারে ব্রহ্মানন্দ সব রেফারেন্স পাওয়া যায়, এবং ঋষি অরবিন্দ মাদারকে শ্রীমাকে বলে গিয়েছিলেন। তার যখন সেন্টেনারি হলো 1972-তে, এটা শুনে রাখুন যে শ্রী অরবিন্দের সেন্টেনারি উৎসব 5 বছর আগে শুরু হয়ে গেল 1967। মাদারকে শ্রীমাকে সবাই প্রশ্ন করলেন যেটা কোথা থেকে শুরু হবে। দুটো প্রস্তাব এলো। একটা হচ্ছে যেই বাড়িটা অরবিন্দ ঋষি অরবিন্দকে বড়দার রাজা দিয়েছিলেন অ্যাজ এ প্রফেসর যখন তিনি ছিলেন, সেই বাড়িটা খুব বড় অরবিন্দ আশ্রম। আর একটা হচ্ছে ক্যামাস স্ট্রিটে শেক্সপিয়ার সজ্জিত অরবিন্দ ভবন, সেটা আমার জন্মস্থান। এই দুটো জায়গা থেকে শুরু হবে তার প্রোগ্রাম, এরকমই চিন্তা ভাবনা। আর 5 বছর ধরে সারা ভারতবর্ষে প্রোগ্রাম হবে, গিয়ে 1972-তে ওটা শেষ হবে। আর আপনারা জানেন 1970-তে শ্রীমা দেহত্যাগ করেন। মা বলেন নো, তোমরা সবাই যাও গঙ্গনাথে। জানেন না গঙ্গনাথ কি? বলেন এরকম যাবে। তারা সব দেখিয়ে দিলেন, শ্রী অরবিন্দ লিখে গেছেন মানে এসব একবারে লেখা ছিল। তোমরা যাবে গঙ্গনাথে, তাকে গুরু রূপে মেনেছিলেন, তাকে ফার্স্ট হোমেজ দেবেন, এটাই আমার প্রতি নির্দেশ। তার সেন্টারি হবে সেখান থেকে। এবার ঘটনা আপনাদের বলছি তারপরে। তো ওইখানে তখন সবাই আসেন, তখন গণেশানন্দ মহারাজ ওখানকার ইয়ে ছিলেন, শিবাই ছিলেন না কৈলাসচন্দ্রী ছিলেন। তার কাছে প্রস্তাব দেন মাদারে, উনি স্বীকার করেন। এবং 1967-এ 5 years before the centenary celebration of Sri Aurobindo, the first seminar was of 3 days was organized in Ganganath Ashram. তারপর তারা ফিরে যায়। এবার আমি যখন 2011-এ শান্তনু ঘোষ বলে আমাদের একজন গুরুমানির শিষ্য, তিনি আমাকে আহ্বান করেন তার বাড়িতে ব্যাঙ্গালোরে। তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান অরুণাচলম রমন মহর্ষির আশ্রম, আর তারপরে পন্ডিচেরি। তো ওখানে সব দর্শন করেছিলাম। একদিন যখন ফিরে আসছি, গাড়িতে চড়ছি, শান্তনুদা বলছে চলুন বর্তমানে তাহলে আমরা রওনা হই। একজন ভদ্রলোক দূর দূর আসছেন, 80 ऊपर তার বয়স হবে। बोले महाराज जी रुकिए, आप गंगानाथ के महंत हैं? हाँ बोलिए। बोले एक बात आपको बोलना है। मैं तो ऑफिस में था, तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि गंगानाथ के महंत आए हैं, तो मैं दौड़ते दौड़ते आया, आपको एक बात बोलनी है। लिखा बोलिए। उन्हें दाइए बोला। बोले मैं इस बात का साक्षी हूँ। आपने सुना है 1967 में एक प्रोग्राम हुआ था, महर्षि अरविंद का जो सेंचुरी सेलिब्रेशन शुरू हुआ था गंगानाथ से। मैं वहां था, बच्चा था, छोटा था, अपने पिताजी के साथ आया था और मैं वहां प्रेजेंट था। मैं यही बताने के लिए आया। और जानते हैं क्या हुआ था? बोलिए। बोले हम लोग जब वापस आए पौंडीचेरी, तब मदर अपने कमरे से निकली शिवा, और बहुत आग्रह लेके पूछने लगी क्या हुआ गंगानाथ में, बताओ कैसा कैसा आपका अनुभव मिला, हम लोग सब बताए। उसके बाद मदर सिर्फ जैसे एक बोलते ना নিজের অন্যমনস্ক হয়ে কথা বলি আমরা। মাদার বললেন আমি যেরকম এখানে অরবিল বানাচ্ছি সেরকম একটি গঙ্গানাথ বানাতে চাইছি। তারপরে আমি যখন ওখানে সেবায়িত হই, আমার কাছে অরবিন্দ আশ্রম থেকে ওখানকার প্রেসিডেন্টরা প্রস্তাব এনেছিলেন আমরা এখানে একটা ইয়ে বানিয়ে দেবো, হল বানিয়ে দেবো। কিন্তু কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার ওটা আটকে যায়, ওটা সত্য চেয়েছিলেন। আমি ওটা সত্য দেওয়া যাবে না,
কেননা এটা গঙ্গনাথের প্রপার্টি, এই জন্য আটকে দেয়। যাই হোক, তো এই আমাদের বিশাল পরম্পরা যে ঋষি অরবিন্দের সে ধারাটি তিনি সেটাকে অ্যাকনলেজ করেছিলেন বইতে, এবং শ্রী অরবিন্দের বইতে কয়েক জায়গাতেই, অনেক জায়গাতে বইতে আয়াঙ্গারের লেখা বই ইত্যাদি সব জায়গাতেই একটা জগন্নাথের রেফারেন্স আছে। ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এদিকে এত ক্ষমতা, তিনি মানে রাজা এসছেন, ভান্ডারা হচ্ছে, ঘি কম পড়ে গেছে, ঘিয়ের 3 গুণ বললেন নর্মদায় ডুবিয়ে নিয়ে এসে, ঘি শেষ হয়ে গেছে, হাজার হাজার লোক এসছে, 10টা টিন নর্মদায় ডোবাতে ওটা ঘি হয়ে গেল, আবার ভান্ডারা হলো। বড়দার রাজাকে, বড়দার আশ্রমটা হচ্ছে আমার নমনাথ আশ্রম থেকে 60 কিলোমিটার। সরদার সরোবর ড্যাম যেখানে मोदी जी ये करेছেন स्टैचू ऑफ यूनिटी, उससे 25 किलोमीटर बाद में है हमारा। तो ওইখানে উনি বললেন সে ঘি হয়ে গেল, তারপরে রাজাকে বললেন তুমি এই 10 টিন ঘি আমার পাঠিয়ে দেবে। সেই ঘি এলো, তো শিষ্যরা বললেন রেখে দিতে। উনি বললেন না, আমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করেছি, আমি মার কাছে চেয়েছিলাম, মা আমাকে এটা দিয়েছেন, তাই মাকে ফিরিয়ে বলে ওই 10 টিন ঘি নর্মদায় দিয়ে দেওয়া গেল। তাই জন্য তখন থেকে গঙ্গনাথের পরম্পরা হচ্ছে একটা ভোগের থালি রোজ ওই মা নর্মদায় গিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, সেটা মা নর্মদার ভোগ হয়। তো গুরু মহারাজজির এই দিব্য লীলা আসলে শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করছেন, ওকে আমি হিন্দিতে বলে দিই, तो भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान अब आप तो चले जाएंगे, वो कलियुग सामने आ रहा है, हम क्या करेंगे, क्या लेकर रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं श्रीमद् भागवत में अपने तेज पुंज को रखते जाऊं। श्रीमद् भागवत ही मेरा शरीर है, मेरा देह है, इसलिए कलयुग में श्री भागवत ज्ञान यज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है। श्री भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत, गीता और भागवत लगा, गीता में 700 श्लोक है, चंडी में 700 श्लोक है सप्तशती, और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी शक्ति को रख दिया है, और जैसे भगवान ने गीता में कहा है यज्ञानाम जप योग्योस्मि, मैं सभी तरह के यज्ञों में, यज्ञ वगैरह हवन सब हुआ, इन सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, जप यज्ञ। आप जितना जप करेंगे उतनी आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिक चेतना होगी, मंत्र चैतन्य होगा, मंत्र शुद्धि होगी आपकी, और आपके अंदर दिव्य अनुभूतियां आएंगी। तो भगवान ने क्या दिया कलयुग के लिए? 2 चीजें, एक सभी शास्त्रों का सार, सभी वेद वेदांत उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में है। नमस्ते माता, स्वागत है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी शक्ति को रखी, अपनी चेतना को वहां समान। तो उद्धव जी ने जब प्रश्न किया कि भगवान कलयुग, घोर कलयुग आ रहा है, क्योंकि भगवान गए और कलयुग का प्रारंभ हो गया, तो क्या किया जाए। तो नारद जी, भगवान वेदव्यास जी, जिन्होंने वेद का वर्गीकरण किया 4 वेद में, ऋग यजु साम अथर्व,
वेद पहले एक ही था, कलयुग के लिए उनको 4 भाग किए गए। दूसरा क्या किया उन्होंने, अष्टादश पुराण, 18 पुराण लिखे, फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। क्या करें, मन बड़ा चंचल है। गंगा किनारे बैठे हैं, कोई कहते हैं सरस्वती नदी के किनारे जो अभी विलुप्त हो गया, तो वहां नारद जी आए। नारद जी आए कि आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, तुम बड़े परेशान नजर आते हो। तो उन्होंने कहा कि शांति नहीं मिल रही है। भगवान देवर्षि नारद से कहा, तो कैसे मिलेगी तुम्हें शांति, तुमने सब कुछ लिख डाला। अच्छा, उन्होंने वेदांत की भी रचना की ना, वेदांत दर्शन सारे उपनिषदों को एकत्र करके जो ब्रह्म सूत्र की रचना की 4 अध्याय में, जिसे हम वेदांत दर्शन कहते हैं, नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत वेदांत। ये अद्वैत वेदांत एक शंकराचार्य जी ने अद्वैत मत में उसका भाष्य लिखा, और दूसरा वैष्णवाचार्यों ने, जैसे आपके रामानुज जी, फिर आपकी वैष्णव धारा में 3 धाराएं आई, रामानुज जी की, निम्बार्क और मध्वाचार्य जी ने उसका विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत, इस तरह से उन्होंने उसकी व्याख्या की। जो भी है, तो 555 सूत्र में वेदांत की रचना की। इतना सब करने के बाद भी व्यास जी को आनंद नहीं मिल रहा, तो तब नारद जी ने उनसे कहा कि आनंद का स्रोत है स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। उनकी कथा ही तो तुमने नहीं लिखी। तो तब नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक ने सुनाए, और उसी से उन्होंने इंट्यूशन के बल पे ध्यान किया। उनको 18,000 श्लोक मिले और उन्हें लिख डाले भागवत। अब श्रीमद् भागवत लिखने के बाद भागवत का प्रचार कौन करे? इस भागवत तत्व को समझने वाला दुनिया में कोई है नहीं। क्यों? इसमें गंभीर रहस्य है। भगवान ने गीता तो कही, कहते अंत में 18 अध्याय आप लोग जानते हैं गीता में, अंत में भगवान ने कहा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति निर्वैरः सर्वभूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। अर्थात ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिसमें जो सर्वत्र मयि पश्यति, जो चारों तरफ मुझे ही देखता है, हर जीव में मुझे देखता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मज्ञानी हो जाने के बाद वह प्रसन्न हो जाता है, उसको अप्रसन्नता नहीं आती है कभी, हर परिस्थितियों में वो प्रसन्न रहता है। न शोचती न कांक्षती, वो न शोक करता है, न किसी की आकांक्षा रखता है, न उसके अंदर कोई कामना वासना रह जाती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है ब्रह्मज्ञानी, यही रहस्य है भागवत का, ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, निर्वैरः सर्वभूतेषु, उसको किसी भी भूत वर्ग के प्रति कोई वैरी भाव उसके अंदर रहता ही नहीं है। जो उसका गलत भी चाहता है, उसको भी वो आशीर्वाद करते हैं। ऐसे जो ब्रह्मभूत व्यक्ति हैं, मद्भक्ति लभते पराम्। अर्थात यहाँ बताया गया कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष अंत में जाके मद्भक्ति लभते पराम्। ये 18 अध्याय का 54-55 श्लोक है, जहाँ खत्म हो रहा है गीता, पराभक्ति की बात कही। अब आइए विषय पर। भाष्योऽयं ब्रह्म सूत्रस्य, श्रीमद् भागवत इन सभी से ऊपर है, वेद वेदांत उपनिषदों से ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसमें पराभक्ति की बात है, नारदीय भक्ति सूत्र में। इसलिए स्वयं नारद ने कहा है कि सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है।
इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मज्ञानी तो पहले होना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी को मुक्ति भी जाती है, वह सभी में स्वयं को देखता है, वो कैवल्य प्राप्त होकर ध्यानस्थ हो जाता है, लेकिन भगवान का लीला सहचर नहीं बन पाता है। भगवान अपना लीला सहचर किसी को नहीं बनाते हैं। ये तो करोड़ों में किसी को मिलता है, देवताओं को भी नहीं मिलता है। इसीलिए जब भगवान ने वृंदावन में लीला की ना, तो ब्रह्मा जी देवता आसमान से निहारते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं भगवान की लीला, और वो कहते हैं कि महत्पाद रजोभिषेकम, भगवान आप हमें, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने मुझे सृष्टि का तो अधिकार दे दिया, लेकिन आपने मुझे अपना लीला सहचर नहीं बनाया। आपकी जो प्रेम लक्षणावृत्ति है, ये भगवान के साथ जो आए थे ग्वाल बालक नहीं थे, ये सब गड़िया नहीं थे, ये लोग कौन थे? सुनिए, दंडकारण्य में जब भगवान घूम रहे थे, त्रेता युग की लीला कर रहे थे, भगवान राम के रूप में वनवास में, तब दंडकारण्य वासी ऋषियों के मन में भगवान से उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान, हम लोग वेदांत में जब जाते हैं, तब आप वेदांत में ब्रह्म के दो लक्षण कहे गए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मीन्स सच्चित आनंद स्वरूप, भगवान स्वस्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण क्या है? ये जगत रूप में जो देख रहे हैं, जड़ चेतन रूप में जो की सृष्टि है, ये भगवान का तटस्थ स्वरूप है। ये दोनों ही उनका ही स्वरूप है, उनका ही स्वरूप है, तटस्थ स्वरूप है। तो तटस्थ रूप है, तो तटस्थ रूप में भगवान का ये जो स्वरूप है, ये ऋषियों के मन में भी एक अद्भुत उत्तेजना थी भगवान को देखकर। उन्होंने कहा कि भगवान, जब ध्यान की गहराई में हम लोग कोशिश करते हैं, आप जो हैं सत रूप में, आपकी जो स्थिति है, देखिए सत्य को मैं समझा देता हूं, हम हैं, आप हैं, हम सभी अपने अस्तित्व का अनुभव करते हैं, लेकिन कैसा अनुभूति है? आप इस कमरे में हैं, हम सभी इस कमरे में हैं, बाहर क्या हो रहा है किसी को समझ में आ रहा है नहीं? तो हम भी सत्य हैं, अहम रूप में हमारी अवस्थिति को हम जान रहे हैं, लेकिन उसका लिमिटेशन है। दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, दैट इज a limited existence. Sat means existence. That is, Sat means existence absolute, but not. Sat means सर्वव्यापित्व, all pervading. जब लेकिन भगवान की जो हमारी भी सत है, सत रूप में हम असली मैं हूँ, यह प्रतीति तो हर समय हमें होती रहती है। हम हैं तभी तो हम काम कर रहे हैं। सारी जो व्यावहारिकताएं हैं जीवन की, वो सब हम पूर्ण कर रहे हैं। अहम असली मैं हूं, यह प्रतीति है। तो अब आता है, लेकिन हमारा जो अस्तित्व खंड अस्तित्व है, हम केवल इस रूम के अंदर सीमित है। क्यों है? क्योंकि मैंने अपने अस्तित्व को इस देह के साथ जोड़ दिया है। मैं यह देही हूं, लेकिन इस देह को, मेरा देह यहां है, इसलिए मैं समझ रहा हूं मैं यही हूं। जब मैं when I will extend myself beyond this body and mind, when I become identified with the whole universe, तभी वो ब्रह्म ज्ञानी है। अहम ब्रह्मास्मि,
मैं सर्वत्र हूँ, यह स्थिति ज्ञानियों को आती है। तो यहाँ हमारी स्थिति हाँ अहम अस्मि शब्द रूप में लिमिटेड है। चित रूप में चित भी है, चित माने ज्ञान स्वरूप, मैं मेरा ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान का लिमिटेशन है यहाँ का। इस रूम के अंदर मैं जान रहा हूँ, यहाँ तक क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ, बाहर क्या नहीं जानता। लेकिन चित रूप में जो ब्रह्म है, भगवान है, वो सर्वव्यापी है, वो सारी दुनिया को एक साथ हर क्षण जान रहे हैं। चित रूप में उनकी अवस्थिति सर्वत्र है। तो ऋषियों ने क्या कहा कि सतरूप में और चित रूप में आपकी जो उपस्थिति है भगवान, ये हम लोग ये ध्यान की गहराई में जाकर थोड़ा बहुत अनुभव कर लेते हैं। लेकिन आप जो आनंद स्वरूप हैं, आपके साथ जो खेला जा सकता है, आपके साथ जो प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है, आप जो हमारे परम प्रियतम के रूप में व्यवहारिक एक रिलेशन में आ सकते हैं, ये नहीं पता। तो भगवान ने उनसे कहा, ऋषियों से कहा कि इस जन्म में मैं पुरुषोत्तम रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। द्वापर में जब मैं आऊंगा, कृष्ण लीला में जब मैं आऊंगा द्वापर में, तब मैं आप लोग सब आइए गोपी बन के। तो ये ऋषि लोग थे जो गोपी बन के आए, गोपी माताएं। दूसरे थे कुछ गोलोक में, जो भगवान की वैकुंठ के ऊपर भी गोलोक धाम है। एक बात आपको स्पष्ट करें, भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, भगवान पूर्ण ब्रह्म है। एते चावश कलापुंज कृष्ण भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण अंशावतार नहीं है, राम अंशावतार है, 12 कलाएं उनकी है। भगवान कृष्ण षोडश कल पुरुष है, 16 कलाएं उनमें है। उपनिषद में जो षोडश कल पुरुष की बात कही गई है, वो उनमें है। इसीलिए पूर्ण शक्ति लेकर भगवान द्वापर और कली के संधि में जो आए थे, वो पूर्ण ब्रह्म थे। उनमें किंचित भी भगवत्व का कोई कमी नहीं थी, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इसका रहस्य भागवत में मिलता है। श्रीधर स्वामी की टीका में जब गर्ग मुनि आए भगवान कृष्ण का नामकरण करने के लिए, तो उन्होंने माता जी से कहा, यशोदा जी से, इसका नाम मैं कृष्ण रखूंगा, जो सभी को आकर्षण करेगा। पूरा जगत इसके आकर्षण से मुग्ध होकर उससे छूट नहीं सकता है, वो इसको खींच लेगा। और ये कृष्ण जो है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा, यह कृष्ण वो है जिसके साथ गुणों में नारायण थोड़ी सी टक्कर दे सकते हैं। नारायण के समान नहीं। वहां बहुत बड़ा विश्लेषण है। श्रीधर स्वामी की टीका जो है, भागवत की मूल टीका, उसमें उन्होंने ये बात उजागर किया है कि नारायण से कंपैरिजन नहीं किया कृष्ण को, कहा कि नारायण थोड़ा बहुत गुण कृष्ण का पाते हैं, जिससे वो पालन आदि करते हैं। कृष्ण स्वयं परब्रह्म परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म। हाँ, इसलिए एके चांस कलापुंश, बाकी जितने अवतार हैं वो अंशावतार है। और कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण पूर्ण ब्रह्म। तो ये रहस्य
श्रीमद् भागवत में जब पता चला तो कौन कौन आए थे गोपी माता को? एक थे दंडकारण्यवासी ऋषिगण, गोपी रूप से आए, गोपी माता के रूप में आए थे। देवरमणीगण जो लोग स्वर्ग में थे, वो लोग भगवान के प्रति आकृष्ट हुई थी, वो लोग आए थे। और गोलोक में नित्य धाम में वो वैकुंठ के ऊपर भी है, वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम, जहाँ भगवान नित्य लीला में प्रविष्ट रहते हैं, जो केवल द्वापर में एक बार प्रकट होता है वृंदावन में। भगवान जब अपनी प्रकट लीला करते हैं, बाकी अप्रकट रहता है, वो चलता रहता है नित्य लीला। तो ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, उन्होंने उनकी स्तुति, उनके बारे में आपने नहीं लिखा, नारद जी ने कहा, तभी आपके मन में शांति है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई और कहा गया भास्वरम ब्रह्मसूत्र से। ब्रह्मसूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवत, जो ये इसलिए श्रीमद् भागवत में जो अनकंडीशनल लव, प्रेम भक्ति लक्षणा की बात कही गई है, ये बहुत उच्च स्तर की चीज है। ये गोपी माताओं का प्रेम, श्री राधिका का प्रेम भगवान के प्रति, वो अहेतुकी, अव्यवहिता, अप्रतिहिता च। अहेतुकी, हेतु मीन्स कंडीशन, अनकंडीशनल लव, अव्यवहिता जो बीच पे टूटता नहीं है, वो थोड़ा इसको गया, ऐसा प्रेम नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू है। पहले धारा, जैसे जल की धारा, आप यदि एक पात्र से दूसरे पात्र में जल ढाले तो वो धारा टूटती है, लेकिन तेल पहले धारा होता है, तेल यदि एक दूसरे से वो टूटते नहीं, तेल ज्यादा घना होता है, विस्कस होता है, तो तेल की धारा टूटती नहीं है, तो इसीलिए वो कंटिन्यू रहता है। इस तरह भगवान के प्रति वो निष्ठा रहेगी। इस तरह से भागवत में कहा गया है, जैसे गंगा जी अपने उद्गम स्थल में, उद्गम स्थल कहाँ? गोमुख में, गंगोत्री में, उस दिन उनका एक ही उनकी अभिलाषा रहती है कि कैसे जाके वो अपने पति समुद्र से मिलेंगे। पहाड़ पर्वत सभी को भेद करती हुई, परम वेग से वो धावित होती हुई, चलती हुई, वो आकर समुद्र जैसी मिलती है गंगा सागर में। अप्रतिहिता, अव्यवहिता, उनको प्रतिहत, उनको रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, और अव्यवहिता, उनको डाइवर्ट भी कोई नहीं कर सकता है। तो ये है प्रेम। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा गहन अर्थ है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष जो लोग ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनकी बात की अवस्था है भागवत। इसलिए कहा गया है भाष्यम ब्रह्मसूत्र से, वेदांत का भाष्य है भागवत। जो वेदांत में नहीं है, तो गीता में नहीं, वो भागवत में है। और वो भी कहाँ है? 18,000 श्लोकों में दशम, पहले 9 स्कंध में क्या है? भगवान की भक्तों की कथा। प्रहलाद जी, फिर ध्रुव जी, अजामिल, अम्बरीश, ये सब भक्तों की कथा कहने के बाद हमारे मानसिक स्तर को, हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धि को बढ़ाने के बाद तब दशम स्कंध में जाके, 10वें स्कंध में जाके भगवान की कथा आती है। भगवान का जन्म वृत्तांत है दशम स्कंध में भागवत के, और वहां जाकर फिर भगवान का जन्म, उनकी बाल लीला, किशोर लीला, वृंदावन लीला, ये सब आता है। उसमें भी
रास पंचाध्याय सबसे कठिन तत्व है। हमारे गुरुजी ने कहा था एक जगह कि ये जो राधा तत्व है, राधा कृष्ण तत्व है, ये इससे श्रेष्ठ तत्व, इससे श्रेष्ठ तत्व हमारे भारत के अध्यात्म जीवन में और कुछ है नहीं। जो इस राधा कृष्ण के प्रेम तत्व को पहचान ले, वह उसका जीवन कृतकृत्य हो जाए, वो बिल्कुल मुक्त हो सकता है। नमस्ते, स्वागत है। तो देखिए, चतुर्था माधुरी से ब्रजे भगवान की 4 माधुर्य हैं और ईश्वर की 2 चीजें होती हैं, एक माधुर्य, एक ऐश्वर्य। जो भक्त होता है, ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य है जो उनकी शक्ति और जिससे वो जगत की सृष्टि लय करते हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को क्या दिखाया? 11 अध्याय में ऐश्वर्य। जब अर्जुन समझ नहीं रहे, मान नहीं रहे, युद्ध करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे, तब भगवान ने कहा देखो मैं कौन हूं। विराट रूप दिखाया अपना, देख रहे हैं सारा ब्रह्मांड उनके अंदर जा रहा है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, मैं अब काल रूप में, टाइम, स्पेस एंड टाइम कॉन्टिन्यूम, विज्ञान भी कहता है ये जो देश और काल, अभी विज्ञान स्पेस और टाइम को लेकर अपनी रिसर्च कर रहा है। काल का अभी तक कोई हिसाब कर नहीं सका है। काल है क्या? ये काल के गर्भ में सब समा जाता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन देखो, तुम नाटक इतना कर रहे हो, मैंने सोच लिया है, भूभार हरण करने में आया हूं। गो रूप में माँ पृथ्वी दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गई थी और ब्रह्मा जी उनको लेकर मेरे पास आए थे, सब देवताओं को लेकर। तो मैंने इसीलिए तो जन्म ग्रहण किया है कि भूभार हरण करूंगा। मैं लाखों लोगों को मारने के लिए ना आया हूं, ये युद्ध मैं रचा रहा हूं। तुम मेरे मित्र हो तो तुम्हारे साथ थोड़ी पार्शियलिटी में कर रहा हूं, तुम्हें यश दे रहा हूं इस युद्ध को जीतने का। दुनिया कहेगी यहाँ अर्जुन एक इतना बड़ा वीर था कि उसने महाभारत का युद्ध जीता। तुम मेरे फ्रेंड हो ना, दोस्त हो, तुम्हें इतना बनता है। तुम्हारे साथ मेरा ये डील है, तुम्हें मैं श्रेय दे रहा हूं युद्ध का, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो तुम क्या करो? देखो सब हुआ पड़ा हुआ है। अर्जुन देख रहे हैं पाप को, कंपित हो रहे हैं। जो वर्णना है गीता में, हाथ जोड़ के बैठ गए, अरे इनको मैं सखा मानता था, उनके साथ मजाक करता था, तो भगवान है, बाप रे बाप। देख रहे हैं उनके मुख में सब घुस रहे हैं, सब लय प्राप्त हो रहे हैं। बोले देखो नाटक मत करो, चलो उठो, युद्ध करो, श्रेय ले लो इस युद्ध को जीतने का। हाँ, और नहीं तो मैं ये तो करवा लूंगा, किसी से करवा लूंगा, मुझे मारना है लोगों को, बस खत्म करना है। अरे अपने परिवार को भी नष्ट करके चले गए ना भगवान, कि वो लोग सब भगवान का अंश होते न हुए थे, व्यभिचारी बन गए थे। उन्होंने देखा कि ये लोग रह जाएंगे तो पृथ्वी का भार बन जाएंगे, तो उन्होंने मूषक पर में उन लोगों का आपस में लड़ा के खत्म कर दिया। भगवान तो निराकार, निर्गुण, निर्विशेष परम तत्व है ना, उनका रहस्य जानना बड़ा कठिन है। तो भगवान निर्मोह है, निर्माण मोहादि समुद्र दोष अर्थात। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये यश तुम ले लो। तो अर्जुन को समझ में आया, बैठी मान। तो भगवान ने कहा कि देखो ये यश तुम लोग ले लो, प्रसाद लेके जाइए। तो भगवान ने कहा कि देखो आप, अर्जुन से कहा यश ले लो और युद्ध करो फटाफट, और आपको मैं ये यश दे रहा हूं। फिर इधर देखिए वृंदावन लीला में, तो ये ऐश्वर्य मैं जो बता रहा हूं,
ऐश्वर्य और दूसरा माधुर्य। तो ऐश्वर्य में भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते जिससे वो संचालन करते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है, जो प्रेमी होता है ना भगवान का, उसको भगवान के इस ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं। वो भगवान का प्रेम का माधुर्य का नारदीय भक्ति सूत्र में दूसरा सूत्र है सात तस्मिन परम प्रेम रूपा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति जो है ये अद्भुत है, जिसे प्राप्त हो जाता है उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। सब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो जो जब ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं भगवान की वृंदावन लीला, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आपने मुझे सृष्टि का जो अधिकार दे दिया, लेकिन आपने मुझे लीला सहसत नहीं किया। आप यदि मेरा कोई सत्कर्म रहे तो मुझे आप किसी भी जन्म में इस वृंदावन के ये गुल्म लताएं बना दे, जिनके ऊपर से पादरजोभिषेकम आपके ये जो भक्त गोपी माताएं चलेंगी, आप लोग चलेंगे, आपके पद रंग से मैं अपने को अभिषिक्त कर सकूं। तो ब्रह्मा जी ऐसी स्तुति कर रहे हैं भगवान को, और इसीलिए नारद जी ने कहा है कि ये भगवान की भक्ति महत्व संत जो लोग भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, वैसे संत ही महत लोग यदि भगवान महत लोग यदि कृपा कर दे आप पर, आपको सेवा करके संतुष्ट कर ले, तो भगवान आपका संतुष्ट हो सकते। जैसे कई उदाहरण हैं श्रीमद् भागवत में कि भक्तों के माध्यम से, भक्तों की कृपा से भक्तों ने भगवान को कहा। जैसे आपने दुर्वासा जी का सुना होगा, वो अम्बरीश के साथ दुर्वासा जी ने गलत व्यवहार किया, तो भगवान का सुदर्शन चक्र उसको मारने के लिए दौड़ा। सारा त्रिभुवन दौड़ करके कोई नहीं उनको बता सका। शिव जी ब्रह्मा जी से भगा दिया, तो स्वयं नारायण जी के पास क्या, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम जाके अम्बरीश से काफी मांगो। हम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों का पराधीन हूं, मैं भक्तों का अधीन हूं। सारी दुनिया मेरी अधीन है, लेकिन मैं भक्तों का अधीन हूं। भक्तों के यदि असंतुष्ट करोगे मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन भक्तों को नाराज करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भगवान की ये अद्भुत लीला है। इसलिए जब भगवान ने अब ये वृंदावन की लीला में देखिए, जहां भगवान की माधुर्य का प्राकट्य है, चतुर्था माधुरी, भगवान का जो ये माधुर्य रस है ना, ये चार तरह के, उनका लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य। लीला माधुर्य, चतुर्था माधुर्य तो ब्रज भगवान का ये चार माधुर्य ब्रज में ही एकमात्र है, वैकुंठ में भी नहीं है। हाँ, ब्रज एव विराजते, एव कर्मणि, एकमात्र ब्रज में ही चार माधुर्य है। लीला माधुर्य भगवान का अद्भुत है, वेणु माधुर्य, अच्छा रूप माधुर्य, वंशी भगवान के रूप का वर्णन है। फिर वेणु माधुर्य, भगवान का वेणु माधुर्य क्या है? भगवान बांसुरी बजाते हैं। लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य। अब भगवान ने जब बांसुरी बजाई, देखिए अब राधा कृष्ण तत्व का सबसे कठिन अंश यही है भागवत का। श्रीमद् भागवत में
जो सबसे कठिन तत्व है ये है श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्याय। इस रास पंचाध्याय से कोई बड़ा तत्व है ही नहीं, एवं इसको जो प्राप्त कर ले, इस तत्व को जो जान ले, वो स्वयं भगवान को प्राप्त करेगा। मतलब ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी भगवान के इस प्रेम तत्व को पाने के लिए तरसते रहते हैं। वो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ खेलना कूदना कैसे हो सकता है? ये तो भगवान ही वैश्व थे। भगवान जिसको स्वयं अपना लीला सहचर बनाते हैं, वही भगवान के इस माधुर्य का आस्वादन करता है। ये भगवान की कृपा से संभव होता है और किसी से नहीं। तो भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान की उस मनोमुग्धकर बांसुरी से यमुना का जल स्तब्ध हो गया, गावियां रुक गई, जैसे जैसे सारा वातावरण मुक्त हो गया। भगवान की बांसुरी बज गई ना, ये तो वही है जो अपने अनाहत क्या होता है? आप जब ध्यान की गहराई में जाएंगे ना, तब आपको साउंड मिलेगा अनाहत, या आहत, ये सारा जो साउंड हो रहा है ना, ये सब घर्षण से पैदा हो रहा है, कहीं कुछ स्ट्राइक कर रहा है इससे। लेकिन इस सृष्टि के आदि में एक नाद है, एक वाइब्रेशन है जो विदाउट एनी स्ट्राइकिंग, ध्यान से समझिए इसको। सृष्टि की आदि में एक नाद है जो कोई आहत होने से या कोई चीज स्ट्राइक करने से पैदा नहीं होती। अनाहत नाद, दैट इज द इनिशियल वाइब्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। अभी विज्ञान भी क्वांटम फिजिक्स में वही बात बता रहा है कि दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड फ्रॉम वाइब्रेशन ओनली। According to energy mass equation of Einstein, E is equal to mc square, matter is nothing but continuous form of energy. शक्ति की संघनित अवस्था ही मैटर के रूप में प्रतीत होती है। वेदांत का जो अद्वैत है, जो नॉन ड्युअलिटी है, नॉन ड्युअल ओमनिपोटेंट ओमनिसेंट फॉर्मलेस क्वालिटीलेस, जो निर्गुण तत्व है, वो नॉन ड्युअलिटी है। वो सारा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, अनंत विस्तार जिसका है, जिसका आइंस्टाइन ने कहा दिस यूनिवर्स, आवर ओनली यूनिवर्स एक्सटेंड्स अराउंड 30,000 लाइट ईयर्स। सो देयर आर सो मेनी यूनिवर्स। स्वामी विवेकानंद ने आज से 100 साल पहले कह दिया था, क्वांटम फिजिक्स आने के पहले, फिजिक्स इज बाउंड ऑन बोथ साइड्स by metaphysics. Planck's constant 6.2 into 10 to the power minus 43 arc second. That is a metaphysical quantity. Planck's length 10 to the power minus 23 meters. Electron का weight 9.3 into 10 to the power minus 23 gram. They are themselves, they are non-matter, but they are creating matter. When they combine together, how it is possible? वो अपने में मैटर नहीं है, ये सारी शक्तियों का ही पुंजीभूत अवस्था है। जब आप ध्यान की गहराई में जिस दिन पहुंचेंगे, आपके सामने मैटर डाइल्यूट कर जाएगा, आपको केवल चेतना की अनुभूति होगी। Then you can penetrate, your eyes will penetrate through this wall, you can see through. When you go deeper into the consciousness, when you delve deeper, when you realize yourself, when you get identified, when you get that you are beyond this body and mind. अभी मैं कह रहा था ना, सच्चित आनंद की जो अनुभूति है, सत्रूप में हम भी अपना अस्तित्व फील करते हैं, लेकिन अभी मैं अपना अस्तित्व इस रूम के अंदर ही जान रहा हूँ। चित रूप में मैं हूँ, ये प्रतीति है, लेकिन इस रूम में ही। और आनंद हमारा क्षणिक है, हम आनंद और सुख के द्वंद्वों में घिरे रहते हैं। दिस वर्ल्ड इज ड्यूअलिस्टिक।
भगवान ने क्या कहा गीता में? निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्जोग क्षमा आत्मावान। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया द्वैत से बनी है, दो से बनी है। सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, ये द्वैत अनुभूति में जगत है। अद्वैत में दुनिया ही एक हो गया। ये जो दो मेल फीमेल प्रिंसिपल्स हैं, ये मेल फीमेल प्रिंसिपल व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन थ्रू पॉपुलेशन, वो भगवान की लीला है ना। क्योंकि स्वयं वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र रचना करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि भगवान क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए कर रहे हैं। लीला हुआ तुमको आनंद आ रहा है इसमें, ये शिष्य स्थिति है, क्यों कर रहे हैं, क्यों मनुष्य को इतना कर्मों का भोग दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे इसका उत्तर नहीं पता, बस इतना जानता हूँ उनको मन कर रहा है। हाँ, तो ये जो अनुभूति है यहाँ द्वैत, ये सारे जो हमारी इस दुनिया की जो अस्तित्व हम जो इसको देखते हैं, ये द्वैत में ही है, द्वैत भान में। दिस वर्ल्ड इज ड्यूअलिस्टिक, ऑलवेज देयर आर बाइपोलर एक्टिविटीज। एक रबड़ को खींचिए, वो दोनों आपस में जुड़ने की, एक नारी और पुरुष में भी जो एक होने की जो आकांक्षा होती है, क्यों? क्योंकि नारी और पुरुष शरीर में एक है, लेकिन आत्मा में वो, हम लोग तो नॉन ड्यूअलिटी को मानते हैं, एक ही आत्मा दोनों में है। वेस्टर्न थ्योरी में हमारे में फर्क क्या है? मैं हार्वर्ड स्कूल गया हूँ, हार्वर्ड, प्रिंस्टन, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, लंदन में हाउस ऑफ कॉमर्स, कई जगह मेरे लेक्चर्स हुए। तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटीज में उन लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों ने चेतना को समझा ही नहीं। There are four cornerstones of science. साइंस कहता है कि स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिविटी, ये जो दुनिया है ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, सामने जो मैटर को देख रहा है वो सच है, ये इसको स्पर्श कर रहा है, ये मैटर है। साइंस ऑब्जेक्टिविटी को मानता है, हम बोलते नो, दिस ऑब्जेक्ट इज द क्रिएशन ऑफ सब्जेक्ट। हम देख रहे हैं इसलिए है, मेरे पीछे अभी दुनिया नहीं है। बहुत गहरा तत्व है, पागल हो जाएंगे आपको सुनने से। मैं गया था मिलने, जॉन व्हीलर प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पैरेलल यूनिवर्स दिए हैं थ्योरी कि एक श्रोडिंगर यूनिवर्स का एक बैंड में, एक कॉम्बिनेशन में फोरियर सीरीज का एक वर्ल्ड है, उसके पैरेलल में दूसरा वर्ल्ड भी रह सकता है, हमारे सामने घूम रहा हो सकता है। हम अलग वेवलेंथ में हम लोग जानते हैं। उनको कहा जाता है मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम थियरी। अब आया एक और थ्योरी, हम लोग जानते हैं ये रिमोट सेंसिंग में इंडिया ने इतना प्रोग्रेस कर लिया, हम लोगों ने वहाँ ज्ञान भेज दिया। तो कोई भी सिग्नल की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकती। सूरज से भी लाइट आने में 8 मिनट लगते जानते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर है। हनुमान चालीसा में सूर्य से पृथ्वी की गति दी हुई है, दूरी दी हुई है। अच्छा, तो हमारे ऋषियों ने अपनी गंभीर अंतर ध्यान से इस दुनिया के पॉजिटिव प्रिंसिपल को ध्यान रखा। इसलिए धर्मों को कभी भी रिलीजन से मत मिलाइए। रिलीजन हैज गॉट अ वेरी स्मॉल एंड कंजर्वेटिव मीनिंग। रिलीजन विल हैव प्रॉफिट, उसका एक कोई कहने वाला होगा, उसकी एक बुक होगी, रिलीजियस बुक होगी, और उसका एक उपासना पद्धति होगी, वे ऑफ वर्शिप। इसके अंदर रिलीजियस हम सनातन धर्म, इसमें किसी ऋषि ने नहीं कहा कि मैंने शुरू किया, विषय है मंत्र दृष्टा है, कॉन्ट्रीब्यूट है। सभी ऋषियों ने एक एक श्लोक, एक एक ध्यान से उनको जो अंतर्दृष्टि में मिला, उन्होंने कंट्रीब्यूट करके इतना बड़ा बनाया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश नहीं किया, उन्होंने दुनिया को एक इक्वेलिटी, समत्व के भाव में लाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले समझा कि मैं ही सब में हूं, अहम अस्मि सर्वत्र, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, उसमें मैं हूं। तो मैं यदि आपको डिस्टर्ब करूंगा तो मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। ये तत्व हमारे ऋषियों ने जाना था, इसलिए हमें किसी से
अब विश्व बंधुत्व सीखने की आवश्यकता नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम हमने सिखाया था। दुनिया में जितने बड़े बड़े देश हैं वो क्या करते हैं? दे कॉम्प्रोमाइज, दे कम टू ए ट्रीटी। तो हमारे पास भी एटम बम है, उनके पास एटम बम है, चलो भाई हमने आपस में ट्रीटी कर लिया, चलो भाई हम लोग नहीं मारेंगे तो हमको नहीं मारेंगे, चलो भाई म्यूचुअल फॉर म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, हम दोनों जिंदा हैं इसलिए। लेकिन हमारी थ्योरी वो नहीं है। हमारी थ्योरी है हमारे प्रेम की थ्योरी। हमने सारे विश्व ब्रह्मांड को वसुधैव कुटुंबकम अपना माना है और उसको रियलाइज किया हमारे अंदर ज्ञान के द्वारा, जिसे कहा जाता है अभी वो प्रमाणित हो चुका है। द थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेट ऑर्डर ऑफ डेविड बोम, जिन्होंने कहा कि टू फोटॉन्स सेपरेटेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है? इसमें लाइट भी हजारों वर्ष लेता है जाने में। टू फोटॉन्स सेपरेटेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इंस्टेंटेनियसली कनेक्ट विद ईच अदर। That is proved in Bell's inequalities in Berkeley lab। मैं गया था वहाँ, मैंने देखा वो सारी चीजें, तो ये सब प्रमाणित हो चुकी है कि their theory of implicate order of David Bohm says that there is an interconnectedness in this universe। ये दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। अच्छा, दूसरी बात है साइंस बिलीव्स, विज्ञान बिलीव किसमें करता है? साइंटिफिक मेटीरियलिज्म में। क्या कहते हैं उसको? एपीफिनोमिनलिज्म। एपीफिनोमिनलिज्म सेज कि मैटर, कॉन्शियसनेस, चेतना इज द प्रोडक्ट ऑफ मैटर। मैटर चेतना को बनाता है। वो लोग कहते हैं कि ब्रेन में कुछ ये आपस में क्या नाम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो चेतना जन्म लेते हैं। ये गलत है। कभी मैटर चेतना को नहीं बना सकती है। कॉन्शियसनेस इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। व्हाट कॉन्शियसनेस क्रिएट्स द मैटर आउटसाइड एंड कॉन्शियसनेस में कॉन्टिनम। आपकी चेतना उनकी मेरी आपकी कोई टूटी हुई चेतना नहीं है। ये सभी सूत्रे मणि बनाई हुई है। भगवान ने गीता में कहा है कि हम सभी चेतनाएं एक अनंत चेतना से जुड़े हुए हैं। एक तो साइंस के जो 4 फंडामेंटल कॉर्नरस्टोन्स है वो टूट चुके हैं, विध्वस्त हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिविटी, एपिफेनोमिनलिज्म, डिटरमिनिस्टिक लॉज, ये सब चीज बहुत सारी गहराइयां हैं। तो मैं गर्व के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हमारा धर्म केवल मात्र ये पूजा पाठ हवन हो गया भाई, पंडित जी हम आके दक्षिणा हिट कर चले गए, इतना ही ले लो। ये हमारे धर्म का बाहरी चीज है। लोगों के कब्जा करने के लिए, अच्छा परिवेश बनाने के लिए, आपके मन की चेतना के शुद्धिकरण हुआ। लेकिन अंदर गहराई में जाकर आप उस ज्ञान को जब प्राप्त करेंगे तब आप किसी का क्षति करेंगे। निर्वही रहे सर्व। जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है वो किसी को वैरी, उसका कोई बनता ही नहीं है, कोई वैर किसी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सर्वत्र अपने को ही देखता है। दैट इज द स्टेट ऑफ नॉन ड्यूअलिटी। तो क्या है कि द्वंद्व कितना है? द्वंद्व है ये ड्यूअलिटी। हमारी सारी अनुभूतियां जो दो में पेयर में है, देखिए सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, हम लोग द्वंद्व के अंदर रहते हैं। इसको कह के मैं खत्म करूंगा। भगवान ने कहा तो रास्ता क्या बताया? तो अर्जुन मैंने बौखला गए बेचारे, पत्थर की बात। भगवान ने कहा ठीक है। पातंजल योग दर्शन ने कहा योग चित्तवृत्ति निरोध, बड़ा कठिन योग का वर्णन है। तो भगवान ने यहाँ बहुत सिंपल बात की। भगवान ने कहा कि सबसे पहले अर्जुन समत्वम योग उच्चते। समत्व की भावना से दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय। बहुत अधिक जब तुम्हें दुख व्याकुल करे तब अपने को कंट्रोल में रखो।
जब बहुत अधिक सुख तुम्हारे जीवन में आ जाए, कंफर्ट पर फील करो, समत्व का भाव में जो भीतर आगा भय क्रोध, किसी वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट में नहीं होगा, क्रोध भी किसी चीज को अप्राप्ति में नहीं होगा। ऐसे यदि तुम धीरे धीरे अभ्यास करोगे, अभ्यास कौन कहेगा, वैराग्य गृह्यते। अर्जुन तुम्हें अभ्यास करते रहना, मैं तुम्हें करा नहीं दे सकता। स्वयं अर्जुन ने भगवान को दे दिया गीता का ज्ञान, लेकिन अर्जुन को पूरा ज्ञान नहीं हो गया। भगवान ने कहा तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तुम्हें इस युद्ध को कराने के लिए जितनी ज्ञान देने की आवश्यकता है मैंने तुम्हें तैयार कर दिया, बस इतना हो गया। लेकिन तुम्हें तपस्या भी बिना होगा नहीं। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट, मैं करा नहीं दे सकता। अब तुम धीरे धीरे क्या करो, इक्वेनिमिटी, तुम अपने जीवन में समत्वम योग उच्चते। यही बात कह के मैं समाप्त करूंगा और थोड़ा भागवत समत्वम। समत्व मीन्स आप दोनों भावनाओं के प्रति, आपके जीवन में दुख कष्ट सब चीजों को जब आप समत्व रूप में देखेंगे ना, तो आप ये जो गंध भगवान ने सृष्टि करके रखा है, ये पेयर ऑफ अपोजिट्स, इसके बाहर आप यू कैन ट्रांसेंड दोस गंधास। जब आप इसको ऊपर जाएंगे गंध के, तो आपको फिर मजा आएगा। समत्वम योग उच्चते, वही योग। योग क्या है, परमेश्वरी का प्रकार, भगवान से युक्त होने का उपाय ही योग। वही अष्टादश अध्याय में 18 तरह के योग का वर्णन किया। अच्छा, अब ये समत्व कैसे प्राप्त होगा, भगवान ने कही तो मैं सिखा रहा हूं, योग कर्म शुभ, यही तो स्किल है, यही तो स्किल डेवलपमेंट होता है। आप अपने कर्मचारियों को जो स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, क्यों, गवर्नमेंट करती है स्किल डेवलपमेंट, आप उसको स्किल देते हैं। योग कर्म कौशलम, तुम्हारे कर्म में हर एक्शंस में ऐसा स्किल डेवलप करो कि तुम्हारी सारी परिस्थितियां तुम्हारे कंट्रोल में रहे, परिस्थितियां तुम्हें कंट्रोल न करें। जिस दिन तुम इस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, तुम निर्गंध नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षमा, तब तुम द्वंद्वातीत भूमि हो। ये जो पेयर ऑफ अपोजिट्स का खेल जो मैंने सृष्टि करके रखा हुआ है, और हर क्षण तुम्हें मैं सुख दुख की अनुभूतियों से ले जाता हूँ। अभी सुख मिला, फिर दुख हो गए, अभी बड़े खुश हुए आप, आपके पति देव ने आपके लिए बड़ा डायमंड का ये ला दिया, उसके बाद बच्चे ना गुजारा हो गया, फिर कुछ बात हो गई, फिर हर क्षण हम लोग सुख और दुख की अनुभूतियों में जीते, हर दिन भर त्रस्त रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि समत्व भाव को अपने अंदर लाओ। जब जितना तुम इंडिफरेंट होते जाओगे, उतना तुम्हारे अंदर ये समत्व आएगा, और समत्व आएगा तो तुम द्वंद की इस भूमि को अतिक्रम कर जाओगे, और तब तुम क्या होगा, समुद्र के ऊपरी सतह पर आप कैसे किस स्थान पे पहुंचेंगे। देखिए, समुद्र की जो ऊपरी सतह पर जो तरंगों का अभिघात है, तरंगे चढ़ती है, बनती है, खत्म होती है, उठती है, स्थिर होती है, फिर खत्म हो जाती है। ये तरंगों का जो अभिघात है, ये तरंगों का जो अभिघात है, उसके अंदर डूबते जाइए। When you delve deeper into the ocean, आप एक स्तर को प्राप्त होते हैं। नमस्ते माता, नमस्ते। तो आप ये एक स्तर को, आप समुद्र के ऊपर तरंगों का विघात है, आप अंदर जाइए, अंदर जाइए, अंदर आइए, अंदर जाइए, जाते जाते एक स्तर आएगा जो स्वयं में स्टैंड स्टिल, वहां कोई वाइब्रेशन नहीं, अचंचल। देखिए, ध्यान से सुनिए, यही योग की अवस्था है। समुद्र के ऊपर चंचलता है, आप समुद्र में डीपर जाइए, जाते जाते एक लेयर मिलेगा जहां स्वयं में कोई वाइब्रेशन नहीं, अचंचल है। अब देखिए, वो जो गहराई वाला स्तर है,
वो अचंचल जो जल का स्तर है वो स्वयं अचंचल रहते हुए सारी चंचलताओं का अधिष्ठान बन रहा है। कैसे वो सारी स्वयं अचंचल रहते हुए सारी चंचलताओं का अधिष्ठान बन रहा है, धारण किए हुए सबको। इसी तरह वो ईश्वर स्वयं कृष्ण ने इतना सारा खेल रचाया, लेकिन वही वह इंडिफरेंट एवरीथिंग, अपने परिवारों को मात मार दिया, खत्म कर दिया, ताकि ये लोग व्यभिचारी हो गए हैं, इन लोगों में मेरी शक्ति है, दुनिया को त्रस्त कर देंगे, ये लोग खत्म कर दूंगा मैं, तो बर्बाद कर देंगे आने आगे निर्मोह तो निर्मोह थे। तो ये जो अचंचल ऋषि अरविंद की भाषा में मैंने अचंचल सत्ता के ऊपर ये सारी चंचलताएं तैयार की रहेंगी। आप जब अपनी चेतना की गहराई में जाएंगे, जितना जप करेंगे, ध्यान करेंगे, और जितना स्थिर हो जाएंगे, तब आपको सारा रहस्य दुनिया को और मालूम पड़ता रहेगा, आप और ट्यून हो जाएंगे। अभी हम हर घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। अभी एक फोन आएगा कि आपका इतना पैसा डूब गया, तो तुरंत चंचल हो जाएंगे ना। अभी आपका बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया, नौकरी में भी प्रॉब्लम, हर क्षण सारी परिस्थितियां हमें प्रभावित करती है। लेकिन इसमें एक ही रास्ता है बचने का कि हम परिस्थितियां हमें न कंट्रोल करें, हम परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखें और स्वयं को इंडिफरेंट रखें। यही है। अब भागवत से सुसमाप्त करता हूं। भगवान ने बांसुरी बजाई। देखिए, वेदांत तो फिर जाके भागवत में खत्म होता है। भगवान वेदव्यास ने आपके अष्टादश पुराण की रचना किया, 18 पुराण वेद का भाग किया ऋग यजु साम अथर्व में। उसके बाद ब्रह्मसूत्र, सारे उपनिषदों का सार लेकर ब्रह्मसूत्र रखा, वेदांत दर्शन। उसके बाद भी शांति नहीं मिल रही है, तो नारद जी ने उनको कहा कि तुमने स्वयं परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, उनकी बात ही नहीं है, तो तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? तब उनको चतुश्लोकी भागवत मिला और उन्होंने भागवत की रचना की 18,000 श्लोक। उसका सबसे कठिन तत्व है जाके 10वें अध्याय का रासलीला का रास पंचाक्षर, 5 अध्याय जहां मूल तत्व है सृष्टि का। वहां क्या है कि उन्होंने कहा कि ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये बड़ा जहां भगवान का लीला सहचर होने का संयोग प्राप्त होता है। भगवान के साथ खेल सकते हो, भगवान को आलिंगन कर सकते हो। गोपियां कौन है? बड़ा रहस्य है। गोपियां कौन है? गो मीन्स इंद्रिय। सुनिए, जो इधर कहा गया है कि अवांग मन से गोचर, वो ब्रह्म क्या है? वो वांग मन अब चक्षु और इंद्रियों की इंद्रियातीत वस्तु है, इंद्रियों से वो नहीं पहचाने जा सकते ब्रह्म। और गोपी कौन है? जिन्होंने गो मीन्स इंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों द्वारा भगवान ईश्वर तत्व को पान किया, जिसको देखकर ब्रह्मा, जिन्होंने भगवान का आलिंगन किया, भगवान को स्पर्श किया, जिन्होंने आलिंगन किया, भगवान को से जिन्होंने प्रेम रचाया। स्वयं ब्रह्मा जी देवता भी कहते हैं भगवान से कि भगवान आप कृपा करके हमको वृंदावन का गुलमलताई भी बना देना, कि आज रजोभिषेकम आप लोग जब हमारे ऊपर से चलेंगे, हम लता भी बन जाए उसके। जो सृष्टि कर सकते हैं वो बोल रहे हैं भगवान से कि इनका जैसा भाग्य तो हमारे भी नहीं है, जो आपके साथ खेल सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, आपसे रूठ सकते हैं। आप उनको उन रूठे हुओं को बनाने के लिए आप उनके चरण भी, राधिका जी के चरण भी पकड़ते हैं। तो ऐसी जिन पर कृपा है आपकी,
हम तो ध्यान में थोड़ा आपको अनुभव कर लेते हैं तो उसकी इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ये सृष्टि रचा लेते हैं। आपके साथ ये लीला नहीं रचा सकते। आपका ये प्रेम लक्षणा भक्ति वो सबसे श्रेष्ठ तत्व है। इसीलिए कहा है कि मद भक्ति लभते पराम। इसलिए गीता में केवल संकेत है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कामशति निर्वैरः सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान ने कहा कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, निर्वैरता को प्राप्त हो जाएगा, जिसमें न किसी के लिए दुख रहेगा, न किसी के प्रति कोई कामना वासना रहेगी, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो सकता है। केवल गीता में पराभक्ति का इंगित किया गया है, लेकिन बताया नहीं गया। पराभक्ति का भाष्य है कि भगवत, इसलिए वास्तवम ब्रह्म सूत्र से भगवत को सभी ग्रंथों का श्रेष्ठ माना गया। इसलिए कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत के पारायण से, मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात में राष्ट्र में गुजराती बड़े लोग जय श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों ने समझ लिया सब घर पे भागवत पारायण कराते हैं। नर्मदा जी के किनारे आश्रम में तो वो भागवत का चलता ही रहता है। और आपके मारवाड़ी समाज में भी भागवत कथा चलती है। आप लोगों ने रहस्य समझ लिया है कलयुग का ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। श्रवण मंगलम आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। अब यदि आप वेदांत पढ़ो तो आत्मा को जानने के लिए पहले श्रवण करो, श्रोतव्य मंतव्य, फिर मनन करो उस पर, निध्यासितव्य, फिर उसका ध्यान करो, तब जाके कभी कथा किसी को मालूम हो। और भगवान ने तो गीता में कहा सहस्राणाम, सहस्रों में कोई मुझे चाहता है और वैसे सहस्र चाहने वालों में कोई मुझे कदाचित प्राप्त होगा। ये तो बड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन भागवत के लिए कहा कह दिया है श्रवण मंगलम। केवल श्रवण से हो, आप केवल सुन लो बस, उससे ही आप पार हो जाओगे। इसलिए जब भगवान देवर्षि नारद ने जब 4 श्लोक सुनाया तो वेदव्यास जी ने तो भागवत बना दिया, और सुनाए किसको, कोई मिल ही नहीं रहा। तब उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को लाए दुनिया में। अब बेचारे सुखदेव जी तो बिल्कुल ब्रह्मज्ञानी पुरुष, 16 साल तक मां के गर्भ में क्यों? क्योंकि पृथ्वी पाप मुक्त नहीं है, इस पापी दुनिया में वो जन्म नहीं लेंगे। व्यास जी ने कहा अच्छा प्रॉब्लम हो गया, तब क्या करें? तब उन्होंने योग माया से प्रार्थना की, हे माता जी अर्ध क्षण के लिए, अर्धमात्रा स्थिरा अनुचर्या विशेषता, अर्धमात्रा अर्ध क्षण के लिए आप उसको पाप मुक्त कर दो। उसी समय भूमिष्ठ हुए सुखदेव जी, 16 साल की उम्र में मां के गर्भ से निकले, जंगल की तरफ जाने लगे। तो जंगल की तरफ जाने लगे तो व्यास जी जो उतने ज्ञानी ब्रह्मसूत्र वेदांत भापुत्र करके तरवो विनेदुम, तरवह अभिनेदुम, जो वृक्ष तब उनको समझा रहे हैं वेदव्यास, तुम्हारा पुत्र तो ज्ञानी है। माताएं स्नान, देवरमणीगण स्नान कर रहे हैं, वहां से 16 साल का युवक जा रहा है, किसी को कोई लज्जा नहीं है। लेकिन जब पीछे व्यास जी आए, तुरंत सब लोग उठ के अपना वस्त्र पहनने लगे। तो वेदव्यास जी को थोड़ा प्रेस्टीज में लगा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा निकल के, हम तो बूढ़े हैं, आप बूढ़े हैं लेकिन आप अभी आपको भी देर है, आप में पुरुष नारी का भेद है, उसमें नहीं है। वो केवल आत्मा को ही आता है, पुरुष नारी का भेद उसमें नहीं है, इसलिए हमको कोई लज्जा नहीं। ऐसा ज्ञानी अब चले गए तो ध्यान करने, अब उनका तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। और इधर क्या हुआ, सुखदेव जी का भी, इधर परीक्षित जी का भी प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने उनको शापित हो गए, तक्षक जी दंशन करेंगे। तब उन्होंने एक श्लोक अपने ध्यान में उनकी समाधि के अंदर प्रक्षेप किया, उसको सुपर इम्पोज किया। ध्यान में बैठे हुए हैं सुखदेव जी, अहो वकीयम स्तन कालकूटम,
तो तब उनको सुनाई दे रहा है सुखदेव जी को कि अरे सुखदेव, तुम यदि वैसे कृष्ण जो इतने दयालु हैं, कैसे दयालु, जो अपने स्तन में विष लगा के पूतना आई है, उसको भी जिन्होंने धात्री पद दे दिया गोलोक धाम में, माता का पद दे दिया, जिसका वध करके ऐसे जो कृपालु भगवान हैं, इनका यदि तुमने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं सुना, तो तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान का क्या फायदा। तब उनका समाधि टूटा, पिता के पास दौड़ते हुए आया, तब पिता ने उनको भागवत सुनाया और तब सुखदेव जी गए परीक्षित जी को सुनाने भागवत। देखिए क्या होता है, गुरु प्राप्ति भी जीवन में एक अद्भुत होता है। नारद जी ने लिखा है नारदीय भक्ति सूत्र में कि यदि आपके अंदर गुरु प्राप्ति की असीम उत्कंठा व्याकुलता आ गई, तो ईश्वर स्वयं चैत्य गुरु के रूप में आपके अंदर आ जाते हैं और वो आपको प्रेरणा देकर सही जगह पहुंचा देंगे। वो खुद आपको गुरु के पास पहुंचा देंगे, गुरु आपके पास आ जाएंगे। एक स्थूल गुरु का प्रयोजन अपने शास्त्रों में कहा गया है, ये बिल्कुल सत्य है। शंकराचार्य जी ने भी इसका भाष्य लिखा है और उन्होंने इसका समर्थन किया है कि नहीं तो भागवत में जो उदाहरण है कि ध्रुव जी 5 साल की उम्र में चले गए, पिता की गोद स्वीकार किया गया। माता जी ने कहा कि पिता की गोद में क्या बैठो, भगवान के गोद में बैठो। जाके उन्होंने अपना योग लगाया, ध्यान लगाया, प्राणायाम सिद्ध हो गया उनका, प्राणायाम सिद्ध हो गया और प्राणायाम सिद्ध हो गया तो उन्होंने क्या किया, उनका ध्यान लग गया, सांस रुक गई, केवल कुंभक लग गया उनका। और उनका कुंभक ऐसा लगा कि दुनिया में हलचल पहुंच गई, देवताओं का सांस रुकने लगा, सब व्यस्त हो गए, अरे ये क्या हो गया। तो सब लोग दौड़े भगवान नारायण के पास कि अरे भगवान आप कुछ कीजिए, क्योंकि ध्यान में ये रहस्य मैं बता देता हूं क्या होता है। आप दिन में कितना सांस लेते हैं? 21,600। 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं? 12 से 18 के बीच का। तो 12-18 का ये कहिए, 12 से 18 के बीच का आप सांस लेते हैं। तो 12-18 दोनों को जोड़िए, 2 से बात करिए, क्या होगा? 15। 1 मिनट में 15 सांस आप लेते हैं। 15 सांस को एक का टाइम पीरियड क्या हुआ? 4 सेकेंड, 60 मिनट। अब उसको कैलकुलेशन करिए, 1 मिनट में 15 होने से घंटे में कितना होगा? 15×6 90, 900। और 24 घंटे में कितना होगा? 936, 918, 21,600 संख्या आ गई। इसको अजपा संख्या है। जब आप योग में सिद्ध होते हैं, हमारे श्यामाचरण लहरी महाशय बहुत बड़े योगी थे, योग सिद्ध जब होते हैं तब आपकी सांस की गति रुकने लगती है। ऐसी स्थिति आती है तब आपकी ये सांस की संख्या कम होकर एक सिद्ध योगी की 2000 सांस की दिन में पड़ेंगे। हिमालय में एक स्थान है ज्ञानगंज करके एक जगह है हिमालय और चाइना के बीच में, जहाँ 1200, 1400, 1500, 2000 साल पुराने ऋषि अभी भी और पूरे पृथ्वी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये श्यामाचरण लहरी महाशय जो हमारे क्रिया योगी हुए, उनके जो गुरु जी बाबा जी महाराज महावतार बाबा, तो क्या होता है, ये सांस की गति तब कम हो जाती है। जितनी देखिए एक चीज तो मानते हैं ना, सांस की गति जितनी, जब आप उत्तेजित हो जाते हैं, किसी पर गुस्सा हो जाते हैं, तब सांस की गति आपकी बढ़ जाती है।
और जब आप जितना शांत होंगे सांस लो। भगवान ने आपको मान लीजिए 10 करोड़ सांस देके भेजा है। अब ये आपकी चतुराई